Guys, good evening, good evening. Good evening, Babita ma'am. Good evening, Pranali. Good evening, Nalanda. I welcome Babita ma'am. I welcome Pranali. I welcome Nalanda. Three other members. I don't know who are there too, but there are three. Is that Vishesh are over here? So just I'm taking the names of three people. Good evening, one and all. Good evening, good evening, good evening. Gudape sir, Murlidhar sir, good evening. Deepak, good evening, very good evening, Deepak. Rupali, good evening. Just now I saw your video, Rupali. Your attempt was very good and you have improved also. Your fluency was very nice and your thought process was very nice, you know. Just you were talking about the excuses, and definitely those excuses postpone whatever is our aim, goal, and whatever the things we want in our life. So only one thing is there which is going to be the barrier, your barrier है between our goals and we people, and that is what? Giving excuses, you know, right? Giving excuses, and that what you raised, and really I'm very much happy, you know, that to see your video. I really enjoyed your video, and really it was the fantastic one, you know. Yeah, Rupali. Deepak, you have appreciated that today's my look and the background of today's video. Deepak, thanks a lot. Thanks a lot, Deepak, for appreciating. Deepak, thank you for appreciating. Good one, good one, good one. Okay, okay. We shall wait for some time for some other members. We are near about 5-6 members on the platform now, and just we are waiting for some other members too. They may come very soon, and immediately we are going to start about whatever the things we discussed yesterday. So chalo, till the people come, just my question to all of you: have you been enjoying the videos which I have been preparing on conjunctions? You know, most of the time this conjunction looks very small part, you know. Nandini, good evening. Aine, good evening. Nandini, good evening. Aine, good evening. This conjunction, that part looks very small, but remember, that part is very important in our day-to-day communication, or in writing, in speaking, or whatever we do with the language. These conjunctions are very important one, you know. Really, if you wish the fluency, आपको fluency चाहिए language में, without conjunctions there is no fluency at all. So we have to focus on what? We have to focus on conjunctions. We have to work on the conjunction, and our conjunction should be very specific. Our conjunction should be very perfect, you know. So please go through all the videos of the conjunctions which I have been posting. Yes, जो मैं हर दिन आपके लिए पोस्ट करने जा रहा हूँ, तो आप उस conjunctions के बारे में थोड़ा सोचो, उसके ऊपर काम कर लो, and just develop your conjunctions, you know. Yes sir, we are going enjoying your all videos and live sessions too. Really, these are helpful. Aini has mentioned over here. Thank you, Aini. Archana, good evening. Nalanda, okay. Rushank, good evening, bete. Archana, good evening. Yeah, Nandini, are you going through the videos of the conjunctions? Because this is in your syllabus. ये आपके syllabus में है. Yes, simple sentence, compound sentence, complex sentence. All these sentences we have to prepare, and these sentences we can prepare only and only with the help of conjunctions, you know. So my dear friends, conjunctions are a very important one, yes, to speak in our day-to-day language. So please work on the conjunctions, develop your conjunctions. Yes, today also I have posted one video, and the notification you might have got, you know, and that notification, that video is about
what, only, however, and for. These are the three conjunctions I discussed, and I posted that video. You might have got the notification, and definitely if you have that notification, you can go through that video, video of conjunctions, Okay, so now we are going to begin what we discussed yesterday. Yes, immediately after the discussion, I think last night we discussed about may and might. may और might के बारे में कुछ हमारा कल डिस्कशन हो चुका था. Last night we discussed about what exactly is the difference between may and might, और वो दोनों का यूज क्या होता है. What are the use of may, what is the use of might, all these things yesterday we discussed, and yes, yesterday immediately after the Dhananjay, good evening, after the discussion of that may and might, immediately after the session, I posted one video in the group, and that video was about may and might, and one more addition was there, that was the must, Immediately after the completion of the session, I posted, yes, one video there, and that video was about may, might, and must. Only one person commented on that. I think Mira Zate went through that video, she saw that video, and just she commented on that video, right? So I'm sure you people also would enjoy that video, because you have to understand all the concepts about may, might, and must, Now, my dear friends, we are going to discuss about must today. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं must के बारे में, सही है ना? We are going to discuss about must, and while discussing we have to remember two things, Number one, we have to discuss about that active voice, and we have to discuss about passive voice too, We have to discuss about active voice, means how to use that must in active voice and how to use that must in passive voice. Both the things we are going to discuss, सही है ना? दोनों के दोनों चीजें हमें अभी आज डिस्कस करनी है. What, active and passive of must, must का active and must का है passive. Both the things we are going to discuss, right? Now say, just we are going to compare may, might and must. जब हम ये may, might के साथ must compare कर लेते हैं, so I expect that what are the difference between may, might and must, may और might एक साइड को रख लो, और जो मस्ट है एक साइड का रख लो. दोनों का थोड़ा कंपेयर करके गिव में व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ. दोनों में क्या फर्क होता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ. कम ऑन, डॉक्टर ज्ञानेश्वर, आइनी, धनंजय, रुशांक, नंदिनी, या देन नेहा, अर्चना, yes, नालंदा, Pranali, I welcome all of you, and just I'm expecting what exactly is the difference between may, might एक बाजू एक साइड हो गया and must, इनमें क्या फर्क होता है, and where do we use must, हम must कहाँ use कर सकते हैं, that part I'm expecting from you. So let's see who is going to mention in the chat box. Who is going to mention in the chat box what is the use of must? ये must का क्या use होता है, आप लोग यहाँ पे chat box में mention करने जा रहे हो. Come on. Where do we use must? कहाँ पे ये must use होता है? That part I want in the chat box, Yes, रुशांक ने लिखा है compulsion के लिए, strong compulsion के लिए हम must use कर सकते हैं. ये रुशांक का ओपिनियन है. नंदिनी, आप क्या सोचते हो? नेहा, ज्ञानेश्वर, आइनी, अर्चना, धनंजय, what do you think about this? आप क्या सोच लेते हो? Must is used for compulsion, must is used for strong compulsion, no doubt. May, might is for possibility, you are absolutely right, Neha. And must is used for compulsion. Must का use हम compulsion के लिए कर लेते हैं. Yes. केलेच पाहिजे. Archana has written that केलेच पाहिजे. Yes, you are absolutely right. केलेच पाहिजे. Yes, हमें वो करना ही चाहिए. इसी का मतलब होता है मीरा, गुड इवनिंग. इसी का मतलब होता है strong compulsion. जब कभी भी हमें strong compulsion की बात करनी होती है, in that situation we are going to use must, हम must का use कर लेते हैं जब कभी भी हमें strong compulsion की बात करनी होती है. तो चलो, कैसे होता है strong compulsion आप सबको मालूम है. You must work hard, you must come on time,
You must develop your English in this period, you know. You must develop your English in this period. आपको English develop करनी ही होगी. ये strong compulsion है. ये मेरा तो है ही, लेकिन इस टाइम का, इस वर्ल्ड का, यस इस वर्ल्ड का, इस कंपटीशन का, इस टाइम का ये स्ट्रॉन्ग कंपल्शन है. हमारी जो इंग्लिश है वो कंप्लीट डेवलप्ड होनी चाहिए. दिस इज द डिमांड ऑफ द टाइम. This is the compulsion of this time, and that compulsion we have to follow. You know that this is the compulsion. We must speak English nowadays because there is going to be a lot of competition. There is a cut through competition, and if we want to sustain, if we wish to sustain in such competition, you know, our English should be really good. Our English should be developed. You know that we should be perfect in English. That's what I'm expecting from all of you, know. So there is a need of English, right? So that's what just you have to remember, you know. Gayatri, good evening. Stay on the platform. Platform के ऊपर रुको, सुनो. Definitely it will help you to develop your English, and whatever is the need, जो भी need है, आपकी need यहाँ पे fulfill हो जाएगी. Yeah, express obligation also, or order or advice for present and future, you know. Yeah, this is obligation is there, you know. राइट ये एडवाइस की जगह हम या एडवाइस भी बोलेंगे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दैट इज करेक्ट वन यहाँ पे नहीं. ये ऑब्लिगेशन होता है, राइट ये स्ट्रॉन्ग कंपल्शन होता है, यही हमें ध्यान रखना है. तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं. यू मस्ट वर्क हार्ड, यू नो. यू मस्ट टेक केयर. यू मस्ट टेक केयर इन दीज डेज, यू नो दैट यू मस्ट टेक केयर, यू नो. यू मस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आपको खुद की केयर करनी ही पड़ेगी. यू मस्ट टेक केयर, यू नो. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ मस्ट, यू नो दैट, राइट. दिस इज अ कंपल्शन. दिस इज अ कंपल्शन. दिस इज ऑब्लिगेशन, राइट. यस, दिस इज ऑब्लिगेशन. ये नेसेसिटी के लिए भी हम यूज कर लेते हैं अर्चना. फॉर वॉट? वी कैन यूज इट फॉर नेसेसिटी ऑल्सो, यू नो. हाउ? जब कभी भी हमें कुछ जरूरत होती है, और वो ज़रूरत बोलने के लिए, वो ज़रूरत एक्सप्रेस करने के लिए, वो नेसेसिटी एक्सप्रेस करने के लिए वी कैन हैव हेल्प ऑफ मस्ट, यू नो. आई मस्ट से यू आर ब्यूटिफुल, यू नो दैट. आई मस्ट से हाँ यू आर ब्यूटिफुल, यू नो. या यू मस्ट कैरी सैनिटाइजर नाउ अ डेज. यू आर एब्सोल्युटली राइट. यस, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. नालंदा बोलने जा रही है यू मस्ट कैरी सैनिटाइजर. Yes, with all of us nowadays, you know that. Right. You must carry, you know. You must take care of yourself. You must attend all these live sessions, you know. I must go to market. I must go to market and purchase something, you know. I must go to market. You are absolutely right, you know. You must work hard. You must take care of yourself. You must take your meal on time, you know. So what we have been discussing about this must. ये must के बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा है. ओके. दिस इज अबाउट एक्टिवाइज, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फोकस है, दिस फोकस इज टोटली ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन, यू नो. राइट. जब कभी भी हमें फोकस देना है रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन के ऊपर कुछ फोकस देना होता है, तो वहाँ पे हमें पैसिवाइज देना पड़ता है. तो कैसे? चलो पैसिवाइज का कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोट कर सकते हो. चार्ट बॉक्स में आप लिख सकते हो. जस्ट यू कैन राइट दैट 1 or 2 examples of passivize in the chat box. Come on, just you are going to mention 1 or 2 examples of passivize in the chat box. चार्ट बॉक्स में आप मेंशन करने जा रहे हो 1 or 2 examples of passivize. फटाफट. Just you are going to mention that 1 or 2 examples of passivize in the chat box. Yes, कैसे कर लोगे? Yes, in what way you are going to mention that one sentence of passivize in the chat box, you know. Come on, right. Yeah, I must go to college tomorrow. Yes, I must go. अब मुझे जाना ही चाहिए. I must go to college tomorrow, you know. I must go. Okay, और क्या हो सकता है? Come on. The mask must be used by everyone. You are absolutely right, Neha. Mask must be used by us, or mask must be carried or used by each and everybody. Mask carry ही करना पड़ता है. Mask must be carry, you know that. Mask must be carry. You know.
Understand? Yeah, sanitizer must be carried nowadays. Sanitizer must be carried nowadays, you know that. Yes, you are right, you know that. यहाँ पे focus देना है. All videos must be watched by you. Correct है I नहीं. All videos must be watched by you. All videos must be watched, you know. All videos must be watched by you, you know. Yes, in this way. Yeah. Ved Prakash. Good evening, Ved Prakash. Yeah. Nandini has written, you must carry this bag. Yeah, activize. This bag must be carried by you. This bag must be carried by you. Yes, this is Nandini's passive voice, you know. And Nandini, this is absolutely correct, you know. This bag must be carried by you, you know. This is passive voice, you know. So in this way, Nalanda has written, the needy people must be helped by us. नीड हो चुका है बेटे वहां पे नीड. यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. करेक्ट कर दिया, तुझे समझ में आ गया. नीडी पीपल मस्ट बी हेल्प्ड बाय अस. करेक्ट है नालंदा. नीडी पीपल मस्ट बी हेल्प्ड बाय अस, यू नो दैट. यस, नीडी पीपल, यस, उन्हें हमें हेल्प करनी ही है. वो हेल्प हमसे, वो हमें उन्हें हेल्प करनी ही चाहिए, यू नो दैट. व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंपल्शन, यू नो. Sanitizer must be carried nowadays by us, you know. Naneshwar, it is correct, you know. So in this way, whenever we talk, in such cases, जब कभी भी आपको फोकस देना होता है किसके ऊपर, रिसीवर के ऊपर आपको फोकस देना है, और जब कभी भी रिसीवर डिमांड कर लेता है फोकस, in that situation we are going to use the sentences of passive voice, you know. हम passive voice के sentences हम यहाँ use करने जा रहे हैं, लेकिन the focus should be on what? The focus should be on receiver, you know. So जब कभी भी आपको focus देना receiver के ऊपर, so definitely you are going to take help of what? Passive voice, you know that. And there you are using what? Must be. देखो मैं बोल रहा हूँ, it must be completed in time. Your projects must be submitted before the given date, you know, right? The marks should be scored by you this time, you know. Yes, marks should be, means marks must be scored by you this time, you know that. Right? Roshank ने लिखा है, elder people must be respected by us, you know. Yes, Roshank, you are right. Elder people must be respected by us. जो elder लोग हैं उन्हें हमसे respect देना ही चाहिए, यू नो दैट. हमसे देना ही चाहिए वो रेस्पेक्ट, उन्हें मिलना ही चाहिए वो रेस्पेक्ट, और ये हमें देना ही चाहिए, यू नो दैट. दिस इज पैसिव वॉइस, यू नो. सो इन दिस वे, जब कभी भी आप मस्ट का यूज कर लेंगे, और जब कभी भी हमें फोकस देना होता है किसके ऊपर, यस, रिसीवर के ऊपर हमें फोकस देना होता है इन दिस केस, और इन दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू यूज द कंस्ट्रक्शंस ऑफ पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस के हम कुछ पैसिव वॉइस के कंस्ट्रक्शंस हम वहां पे यूज कर सकते हैं, यू नो. सो दिस इज अबाउट मस्ट, यू नो. पहले तो हमें ध्यान देना पड़ेगा ये मस्ट कहाँ पे यूज होता है, ये मैंने आपको बता दिया. नेसेसिटी कैसी होती है, देखो, वी मस्ट गो देयर, नेसेसिटी है, राइट. वी मस्ट गो टू market and purchase some furniture. We must purchase some furniture. This is necessity, garaz, you know that. I must eat something now. I must eat something now. मुझे अब कुछ तो खाना ही चाहिए because I'm hungry. I'm not feeling well. I must eat something now. मुझे कुछ तो खाना ही चाहिए. I must eat something now, you know. You must speak English. This is necessity. This is the demand of the time. So जब कभी भी आपको demand of the time देनी है, necessity के बारे में बोलना है, at that moment just we are going to use this must, you know. यहाँ पे हम must का use करने जा रहे हैं. गुड इवनिंग सरू, गुड इवनिंग सरुप्ता, गुड इवनिंग. तो मस्ट ऐसे हम यूज कर लेते हैं. दैट्स ऑल अबाउट मस्ट, यू नो. नाउ मस्ट के बाद माय डियर फ्रेंड्स देयर इज गोइंग टू बी व्हाट? ऑट टू. क्या होता है? ऑट टू. ऑट टू का. एन एप्पल मस्ट बी ईटन बाय अस एवरी डे. यस, एवरी सिंगल एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे फ्रॉम अस, यू नो. सो एप्पल मस्ट बी ईटन. Apple must be eaten by us. Apple must be eaten. You are absolutely right, नेहा. आपका एक करेक्ट है. यस, प्रतीक्षा बोल रही है. या गुड इवनिंग प्रतीक्षा, गुड इवनिंग प्रतीक्षा. सो व्हाट आई एम टॉकिंग, एप्पल मस्ट बी ईटन, यू नो. इट इज करेक्ट. फाइन, फैंटास्टिक. तो आगे हम चलने जा रहे हैं.
So what is after must? Must के आगे क्या होता है? Must के आगे है ought to. किसकी बात हो जाएगी? Ought to. Now I'm expecting what is meaning of that ought to and where to use that ought to, you know. Come on. What is the use of that? Yes, I'm expecting from you. कहाँ पे वो ought to use होता है? What is the use of that ought to, you know? Come on, come on. What is the meaning of this? Om Prakash, good evening. Om Prakash, good evening. Just I'm expecting that. What is the use of that ought to? उसका meaning क्या होता है? उसका use क्या होता है? Ought to की बात चल रही है. Come on. What do you mean by ought to? Yes, yes, yes. Roshan. Responsibility. When necessity is there. Okay. Okay. और क्या होता है? Ought to. Responsibility, necessity. Anything more? Anything more? What do you think about ought to? क्या होता है ought to? Nalanda, ought to? Yeah, you are absolutely right, Nalanda. Ought to का मतलब होता है moral obligation. Moral obligation. Obligation का मतलब होता है कुछ restriction. बंधन जो बोलते हैं बंधन, restriction. And that too we are speaking here about moral obligation की बात कर रहे हैं हम. Moral restriction है वो, moral obligation है. Your thesis must be submitted in stipulated time. You are absolutely right, Dr. Naneshwar. Right. I will submit. Stipulated time is already over, but I'll submit, you know. Yes. केलंच पाहिजे म्हणण्यापेक्षा the meaning of this ought to is करायला हवं. That is the meaning, you know. करना चाहिए is the meaning. करायला हवं. This is the meaning of this ought to. And yes, नालंदा ने यहाँ पे देखो लिखा है, मराठी में लिखा है उसने, नैतिक बंधन, कर्तव्य, नैतिक बंधन. जब कभी भी हम बातें कर लेते हैं ड्यूटीज की, जब कभी भी हम बातें कर लेते हैं व्हाट मॉरल ऑब्लिगेशन की, मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है व्हाट एक नैतिक बंधन. एंड दैट ड्यूटी इज गोइंग टू बी देयर. ड्यूटी जब कभी भी हमें एक्सप्रेस करना है ड्यूटी, जब कभी भी हमें एक्सप्रेस करना है मॉरल ऑब्लिगेशन, in such situations, in such cases, you know, we use what? We use ought to in our day-to-day communication. Yes, नालंदा ने लिखा है करायला पाहिजे, but what is that? That is नैतिक बंधन, or that's going to be what? Moral obligation. और यही moral obligation के बारे में हमें कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा. एंड मीरा ने लिखा है we ought to leave now, you know. कहाँ लीव करोगे? लीव, LEAV, कहाँ छोड़ के जाना है? You ought to came regular. यहाँ पे ना रूपाली ने लिखा है ought to के सामने came लिखा है. देखो ought to के सामने कभी भी verb का second form नहीं आएगा, ought to के सामने verb का first form ही आता है. तो रूपाली आपको लिखना है you ought to come regularly. You ought to come regularly. ऐसे आपको लिखना है एंड यूज करना है ought to का, you know. यहाँ पे शेप लिख रहा है I ought to know. क्या नो? I ought to know. क्या नो? I ought to know. This is not your moral obligation. I ought to know. या क्या नो उसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. नालंदा लिख रही है we ought to love our nation. You are absolutely right. We ought to respect our tribe color. This is our moral obligation. We ought to respect our parents, you know. We ought to respect our parents. This is our obligation, moral obligation. We ought to respect our seniors. हमें अपने सीनियर्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए. यस, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर सीनियर्स. हमारे सीनियर्स को हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए. वी ऑट टू हेल्प नीडी पीपल. आई नो यू आर करेक्ट. हमें नीडी पीपल को हेल्प करनी चाहिए. वी ऑट टू हेल्प नीडी पीपल, यू नो. वी ऑट टू वर्क हार्ड फॉर आवर सक्सेस, यू नो दैट. वी ऑट टू रियली help people in this pandemic, you know that. So what is this? This is just you have to understand moral obligation. So जब कभी भी हमें moral obligation की बात करनी है, in these cases we are going to use. Nandini has written, we ought to learn English to survive in this competitive world. You are absolutely right. We ought to learn English to survive in this competitive world. Nandini, you are absolutely right, you know. Dr. Naneshwar has written,
ought to is used for moral responsibility. You are absolutely right. Mira likhti hai, we ought to respond. We ought to respond. Live session charting, you know that. Yeah, we ought to follow the discipline. You are absolutely right. We ought to hit the like button if we are enjoying the session, you know. ये कभी नहीं होता है नेहा, बहुत बार ऐसे नहीं होता है. Okay, let it be. नेहा बोल रही है, yes, we ought to hit the like button, you know. लेकिन आप भूल जाते हो, आपके लिए वो उतना कुछ सीरियस इशू नहीं होता है, लेकिन द पर्सन हु इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, डेफिनेटली इट मैटर्स फॉर हिम, इट मैटर्स फॉर हिम, यू नो. इन दिस वे जब कभी भी हम बातें कर लेते हैं और बातें हो रही है मॉरल ऑब्लिगेशन की, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक नैतिक बंधन आपलं आहे आणि ते बंधन आपल्याला पाळलं पाहिजे, आपल्याला ते केलं पाहिजे, असं बोलण्यासाठी जस्ट वी आर गोइंग टू हैव हेल्प ऑफ ऑट टू. हमें हेल्प लेनी होती है ऑट टू की, और ये बस आपके दिमाग में आपको लेना है. ना देखो, इसे पैसिव में लेके जाना है, इसे पैसिव में लेके जाना है. तो कब पैसिव कर सकते हैं हम इसका? यू आर गोइंग टू टाइप इन द चैट बॉक्स. कब पैसिव कर सकते हैं हम इसका? व्हेन वी कैन मेक पैसिवाइज ऑफ दिस, व्हेन वी कैन डू द पैसिवाइज. कम ऑन, या राइट इन द चैट बॉक्स. ऑट टू का पैसिवाइज करना है तो कब कर सकते हैं? व्हेन वी कैन डू पैसिवाइज. Come on, come on. या कब कर सकते हैं हम पैसिवाइज? When we can hit on, or sorry, when we can change into the passivize. Object, receiver. Nandini, you are absolutely right. You are here, you are here, you are absolutely right. Rushank, object. Yes, true, true. जब कभी भी ऑब्जेक्ट होता है ना, तब ही हम उसे पैसिवाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो चलो, how's the situation? How's the situation? Sentence is going to be there. Sentence is going to be there. Come on. Right. Sentence, sentence. चलो पैसिव दे दो, पैसिव का सेंटेंस दे दो. If object is there, now I am expecting sentence from you. How we are going to make passivize? We ought to aware about the national integration. We ought to. वहां पे देखो नानेश्वर, जो अवेयर नाम का आपने लिखा है ना, अवेयर ये वर्ब नहीं है. अवेयर ये वर्ब नहीं है. वर्ब नहीं है तो आपको ought to और अवेयर के बीच में बी लाना पड़ेगा. We ought to be aware और we ought to get aware. We ought to get aware or we ought to be aware. You know that. Like this आपको लिखना पड़ेगा. The examination ought to be taken by university, you know. Yes, yes, okay. लेकिन देखो मैं बोल रहा हूँ क्या, ये जब कभी भी आपको ought to यूज करना है तो आपको ध्यान रखना है moral obligation. moral obligation के ऊपर ध्यान रखो. moral obligation. ये यूनिवर्सिटी का moral obligation नहीं है. obligation एक अलग बात है और ये moral obligation एक अलग बात है. यहाँ पे आप मिस व्हाट आई एम टॉकिंग, यहाँ पे देखो किसी ने तो लिखा था कमेंट, या नेहा ने लिखा है, यस व्हाट, द एग्जामिनेशन ऑट टू बी टेकन बाय यूनिवर्सिटी. ये मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है यूनिवर्सिटी का, सही है. हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन होता है. क्या होता है मॉरल ऑब्लिगेशन? हमें हमारे माँ बाप की केयर लेनी होती है. यस, हमें देश के लिए कुछ करना पड़ता है, नीडी पीपल को हेल्प करना चाहिए. ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, सही है, और ये हमारी ड्यूटी भी होती है. तो इन दिस सिचुएशन जब कभी भी ड्यूटी की बात चल रही है, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात चल रही है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली वी कैन यूज दिस ऑट टू. ऐसे सिचुएशन में ही हम ऑट टू का यूज कर लेते हैं. नंदिनी ने कुछ लिखा है, इंग्लिश ऑट टू बी लर्न्ड बाय अस टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. या और कुछ और, आवर नेशन ऑट टू बी प्रोटेक्टेड बाय सोल्जर्स, यू नो दैट. यस, आवर नेशन ऑट टू बी प्रोटेक्टेड बाय सोल्जर्स, यू नो. Yeah, good. और कुछ. Come on. Yeah, our parents ought to be respected by us, you know. Right? The tricolor ought to be respected by us. देखो आप सिचुएशन कैसी है, ट्राई कलर की बात चल रही है, हमारे फ्लैग की बात चल रही है, नेशन के फ्लैग की बात चल रही है. और जब कभी भी हम नेशन के फ्लैग के बारे में बात कर रहे हैं, ट्राई कलर का डिस्कशन हो रहा है. और जब कभी भी वहां पे डिस्कशन ट्राई कलर का है और ट्राई कलर के बारे में डिस्कशन है, तो आपको बोलना पड़ेगा, हेलो दिस इज ट्राई कलर, रिमेंबर दिस ऑट टू बी रेस्पेक्टेड बाय यू. दिस इज नॉट अ कॉमन क्लॉथ जेंटलमैन. दिस ought to be respected by each and everybody.
This ought to be respected by each and every citizen of the nation. This tricolor ought to be respected by each and every person of the nation. You are talking. This is the situation. This is the situation. And in this situation आपको बोलना है. Yes, कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे आपके दिमाग में आ रहा है, तो उसे आप अवेयर कर रहे हो, उसे आप सुना रहे हो. हेलो जेंटलमैन, दिस इज ट्राइकलर. This tricolor ought to be respected by each and everybody. This is our duty, this is our moral obligation, and this is the responsibility, and this is the really need, you know. And this is your moral obligation, this is my obligation, this is each and everybody's moral obligation. We ought to respect tricolor active, or tricolor ought to be respected by each and everybody. Needy people ought to be helped by each and everybody. ही कोई है, समझ लो, नीड है उसकी, जरूरत है उसकी, वो जरूरत में है, कुछ उसे प्रॉब्लम है, तो हम बोलने जा रहे हैं he ought to be helped by us, you know. This is our moral obligation because he is our friend, he is in our company, he is from our company, you know. He ought to be helped, he ought to be helped. Yes, he ought to be helped by each and everybody, you know. Yes, वो सबसे उसकी help होनी चाहिए. He ought to be helped, you know. That's so what is this? This is moral obligation. And ऐसे situation में spitting ought to be avoided by each and everyone. Neha, you are absolutely right. Spitting, जो थोकना होता है, रास्ते के ऊपर हम थोक लेते हैं बस खड़े होके, तो वो ought to be avoided. ये हमारी moral obligation है बच्चे लोग. Yes, teacher ought to be respected by students. ये आप कहावत हो चुके हैं अर्चना. This is now कहावत, you know. Yes, most of the guys, they are not interested to at all respect the teachers and all, you know. ये अब कहावत होते जा रही है. Yes, good होना चाहिए लेकिन नहीं होता है. नालंदा बोलने जा रही है the instructions ought to be followed. नंदिनी लिखने जा रही है street dogs ought to be protected by us, you know that. Street dogs ought to be protected by us, you know. Dr. Nanesh, our seniors ought to be respected by us. You are absolutely right. Our seniors ought to be respected by us, you know. Our seniors ought to be respected by us. You are absolutely right, you know. Yes, हमारे जो सीनियर्स हैं उनका रेस्पेक्ट हमें और हमसे रखना चाहिए, you know that. Yes, our seniors ought to be respected by us, you know. This is going to be the example of what? This is going to be the example of passive voice, you know. Yes, you are absolutely right. And you have got what is the use of ought to. ought to का ये use क्या होता है अभी आपके दिमाग में आ चुका है. Just you have got it, you know that. जब कभी भी moral obligation, responsibility और ड्यूटी की बात होती है, मॉरल ऑब्लिगेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जब कभी भी हम ड्यूटी की बात कर लेते हैं, इन सच केसेस, इन दैट सिचुएशन, वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ ought to. नाउ गिव मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ought to एंड must. must और ought to में क्या फर्क होता है? What is the difference between ought to and must? ये दोनों में क्या फर्क है? Come on, just I want to know from you. What is the difference between ought to and must? दोनों में क्या फर्क होता है? Just you are going to write in the chat box. आप chat box में लिखने जा रहे हो दोनों में what is going to be the difference? What is the difference between ought to and must? ought to and must. Come on. ought to and must. दोनों में क्या फर्क होता है? ought to and must. Yes. कौन लिखने जा रहा है? और soldiers ought to be respected by each and everybody. You are absolutely right. moral obligation we have to use ought to हमें moral obligation के लिए यूज करना होता है. करेक्ट है. moral obligation हमें किसके लिए? moral obligation के लिए ought to यूज होता है. लेकिन must कहाँ यूज होता है? where we can use must. दोनों में क्या फर्क है ought to में और must में? वैसे तो दोनों ना कंपल्शन जैसे दिख लेते हैं, दोनों ना कंपल्शन जैसे ही हमें फील होते हैं, लेकिन नंदिनी लिख रही जा रही है मस्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कंपल्शन होता है, एंड जो ought to होता है ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मॉरल ऑब्लिगेशन होता है. ये बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा. और वैसे ही यहाँ पे रुशांक लिखने जा रहा है सही है. यस, ought to इथिकल नहीं बेटे, मॉरल बोलो, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नालंदा बोल रही है ought to जो ड्यूटी होती है मॉरल होता है.
एंड मस्ट जो होता है वो पॉसिबिलिटी और परमिशन होती है. दैट्स ट्रू नालंदा. एंड इन दिस वे जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द नीड and what exactly is the meaning of ought to and must, you know. और दोनों में क्या फर्क है अभी आपके दिमाग में आ चुका है. नाउ देखो, जस्ट वी आर गोइंग टू टर्न टुवर्ड्स अनदर मॉडल ऑक्सिलरी, और वो होता है नीड नॉट. वो होता है नीड नॉट. वो होता है नीड नॉट, और उसका मीनिंग है जरूरत नहीं है. मोस्टली ये जो नीड नॉट है ये ऐसे नेगेटिव में ही यूज किया जाता है ना. थोड़ा नीड की तरफ देखो. जब हम वर्ड नीड सुन लेते हैं, दिस वर्ड नीड, यस दिस वर्ड इज ऑफ 3 टाइप्स, यू नो. 3 टाइप का ये वर्ड है. एक जो नीड होता है नाउन है, नाउन गरज असं म्हणतो आपण त्याला. नेक्स्ट वन नीड एक वर्ब आहे, नीडेड म्हणतो ना. शी नीडेड 10,000 रुपीज, शी नीडेड 10,000 रुपीज. वो जो नीड है वर्ब भी है, एक्शन वर्ब है, और अकॉर्डिंग टू द टेंस वी यूज दैट, यू नो. अकॉर्डिंग टू द टेंस वी यूज दैट. एंड वन मोर थिंग इज दैट नीड नॉट. नीड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है. व्हाट इज दिस? दिस इज हेल्पिंग वर्ब. This is helping verb. Need not is helping verb, and this is helping verb, but this helping verb is from modal auxiliary. This is from modal auxiliary. Need not is helping verb, and this is from modal auxiliary. You know, ये modal auxiliary से है. Need not is helping verb. ये helping verb है, और ये modal auxiliary से होता है. सही है. ये 3 टाइप का वर्ड है. एक तो नाउन है, जरूरत. नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं ना हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये नाउन है. नीड का मतलब जरूरत होता है, नाउन है. यस. दूसरा जो नीड है, जब हम ही नीड्स 10,000 रुपीज, सिंपल प्रेजेंट में नीड्स यूज किया है. ही नीडेड 10,000 रुपीज, सिंपल पास्ट में हमने यूज किया है, तो वो वर्ब है. वर्ब है. शी विल नीड 10,000 रुपीज, सिंपल फ्यूचर में हम चले गए हैं. सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ वर्ब. वो मेन वर्ब है. मेन वर्ब है. व्हाट इज दैट? दैट इज अ मेन वर्ब, यू नो. वो मेन वर्ब है. एंड वही जो नीड होता है नॉट के साथ हम जब यूज कर लेते हैं, तो वो जो वर्ब है नीड नॉट हो जाता है, और वो हेल्पिंग वर्ब बोल के मेंस मॉडल ऑक्सिलरी बोल के हम उसे यूज कर लेते हैं. आप सबके दिमाग में होगा ये जो सभी के सभी मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज हम हेल्पिंग वर्ब्स बोल के यूज कर लेते हैं. ये सभी मॉडल ऑक्सिलरीज हम हेल्पिंग वर्ब्स बोल के यूज कर लेते हैं, और इन्हीं मॉडल ऑक्सिलरी के सामने वर्ब का, एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. वर्ब का, एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. ये आपके दिमाग में है. सो यहाँ पे देखो, मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस रखने जा रहा हूं, और आप कैटेगराइज करोगे. नाउन है क्या वर्ब है, नाउन है क्या वर्ब है, क्या एक्शन वर्ब है. नाउन है क्या हेल्पिंग वर्ब है, या एक्शन वर्ब है, ये आप कैटेगराइज करने जा रहे हो अभी, यू नो दैट. सो 3 सेंटेंसेस आई एम गोइंग टू कीप इन फ्रंट ऑफ यू. चलो, वेरी फर्स्ट सेंटेंस सुनो, ध्यान से सुनो, यू नो. ही नीड्स टाइम टू थिंक. ही नीड्स टाइम टू थिंक. यहाँ का नीड्स मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, या नाउन है, इसके सामने आपको लिखना है. दूसरा एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं. यस, दूसरा एग्जाम्पल ऐसे है. व्हाट? यस, देखो. यस मनी इज माई नीड. ब्रेड एंड बटर इज माई नीड. यहाँ पे ये नीड क्या बोल के आया है, और इसका फंक्शन क्या है, ये आपको लिखना है चार्ट बॉक्स में, यू नो. ही नीडेड, और ही नीड्स, और ही विल नीड. ये यहाँ पे नीड क्या है, ही. यहाँ पे मैं दूसरा सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूँ. देखो. यस, व्हाट इज दैट? यस, हिज नीड इज मनी, और माई नीड इज मनी. हिज नीड इज मनी. यस, दूसरा सेंटेंस है. एंड थर्ड सेंटेंस में आपके सामने रख रहा हूँ. ही नीड नॉट वरी.
ही नीड नॉट वरी। देखो तीनों जगह पे ये नीड हम यूज करने जा रहे हैं, ये तीनों जगह पे हम नीड यूज करने जा रहे हैं। जस्ट वी आर गोइंग टू यूज नीड एट 3 प्लेसेस। ये तीनों जगह पे हमने नीड यूज किया है। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, चलो यस यस यस, मुझे चाहिए क्या, क्या चाहिए मुझे अभी, ये नीड क्या है, क्या बोल के हमने यूज किया है, ये आपको मेंशन करना है। चलो यस 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 यस, कोई लिख रहा है, यस कोई लिख रहा है, लिखो लिखो। देखो फर्स्ट सेंटेंस, ही नीड्स 10,000 रुपीज, इसमें क्या है, नीड्स, ही नीड्स 10,000 रुपीज। नीड्स क्या है, मेन वर्ब है, यस मेन वर्ब है। माई नीड इज मनी, माई नीड इज मनी, यहां पे जो नीड है नाउन है। एंड अभी बोल रहा हूं मैं, ही नीड नॉट वरी, ही नीड नॉट वरी, यहां पे जो नीड नॉट है ना, यहां पे नीड नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू नो। सो इन दिस वे आपको यहां पे समझ लेना है, क्या समझ लेना है, नाउन बोल के कब यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब बोल के कब यूज करना है, एंड मेन वर्ब बोल के कब यूज करना है। ये नीड ही है, यही नीड 3 जगह पे आता है। कभी नाउन बोल के आता है, यस बेटा यस यस यस, वर्ब होता है, नाउन होता है, मॉडल ऑक्सिलरी, यू आर करेक्ट नंदिनी। तो कभी ये वर्ब बोल के आता है, कभी नाउन बोल के आता है, कभी मॉडल ऑक्सिलरी बोल के आता है। तो यही हमें दिमाग में रखना है, ये कौन से सिचुएशन में वर्ब बोल के आता है, कौन से सिचुएशन में नाउन बोल के आता है, और कौन से सिचुएशन में वो हेल्पिंग वर्ब बोल के आता है, यू नो दैट। ये हमें थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। तो जब कभी भी वो मेन वर्ब बोल के आता है, तो देखो ये क्या होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट, ये सब्जेक्ट के सामने वो नीड मेन वर्ब बोल के आएगा, राइट। और उसके ऊपर यस जरूरत के हिसाब से, ईडी जरूरत के हिसाब से, ऐसे हमें ऐड करना पड़ेगा। एंड उसके सामने, नीडेड के सामने ना, नीड के सामने डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट होगा। नीड के सामने क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, सही है। नीड के सामने वो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन कब, मेन वर्ब बोल के जब आ रहा है वो। नाउ देखो, जब कभी भी वो हेल्पिंग वर्ब बोल के हम यूज कर रहे हैं, निड नॉट बोल के यूज कर रहे हैं, तो उसके सामने, निड नॉट के सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। निड नॉट के सामने क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। निड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। एंड वन मोर थिंग इज गोइंग टू बी दैट, दैट इज माई नीड इज मनी। देखो ईज के सामने नीड आ चुका है, ईज के सामने नीड आ चुका है। ईज के सामने नीड कैसे आएगा, जब नाउन है तो आ सकता है। यस नाउन है तो इट इज लैपटॉप, इट इज लैपटॉप, दिस इज लैपटॉप। ईज के सामने लैपटॉप आ रहा है, ईज के सामने लैपटॉप आ रहा है, तो नाउन है। तो यहां पे भी वैसे ही है, व्हाट, दिस इज माई नीड, दिस इज नीड, दिस इज नीड, मनी इज माई नीड। तो यहां पे वो नाउन बोल के आ रहा है। तो समझ लो व्हाट, यही जो नीड है कभी नाउन बोल के होता है, तो कभी वो वर्ब बोल के आता है, तो कभी कभी हमें उसे यूज करना होता है एज हेल्पिंग वर्ब, एज हेल्पिंग वर्ब हमें उसे यूज करना होता है। तो चलो, आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट नाउन, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ये आपका अभी क्लियर हो चुका है। तो हमें क्या देखना है, आज हमें क्या डिस्कस करना है, ये जो डिड नॉट है, हेल्पिंग वर्ब मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी बोल के कैसे यूज करना है। यस, जस्ट वी हैव टू यूज दिस डिड नॉट as modal auxiliary in our day-to-day communication. So इसी need not के आगे हमें यूज करना है verb का first form, यूज करना है verb का first form। चलो, just I want some sentences, आप टाइप करने जा रहे हो कुछ sentences, need not ये आप helping verb बोल के यूज कर रहे हो, उसके सामने verb का first form, and just you are going to type some sentences in chat box. Come on, need not के examples मुझे चाहिए। I want some examples of need not from you. Come on, write in the chat box. Examples of need not. Examples of need not. I want from you. Just you are going to quote in the chat box. Come on. Yes, need not के examples दे दो. Yes, I'm waiting. Till then, I'll take a glass of water. आईनी ने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे,
I need not go to ATM, you are correct, or bank as I can do transfer, you are right. Need not go ATM, ATM जाने की जरूरत नहीं है, you are correct. Yeah. बाकी लोग कोई बाकी लिख रहे हैं, यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी अबाउट एग्जामिनेशंस, आई नीड नॉट स्पीक विथ हिम, ओके मत बात करो, छोड़ दो, जाने दो. यू नीडंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके आई नीड नॉट योर हेल्प. बेटे यहाँ पे धनंजय गलत हो चुका है. आई नीड नॉट के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए धनंजय, ध्यान रख. नीड नॉट के आगे व्हाट आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, तो ही वो हेल्पिंग वर्ब बोल के आप यूज कर सकते हो. वेद प्रकाश ने लिखा है आई नीड वाटर, वहां पे जो नीड है ना वेद प्रकाश, वो आपने वर्ब बोल के यूज किया है, मेन वर्ब बोल के यूज किया है, लेकिन आपको नीड नॉट लिखना था. नीड नॉट के सामने हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना जरूरी है. मीरा ने लिखा है आई नीड नॉट टू वेंट, ऐसे कैसे होगा मीरा, नीड नॉट टू वेंट. नीड नॉट के आगे वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे आएगा, ये गलत है. नीड नॉट के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना है, दैट्स ट्रू, यू नो. आई नीड नॉट वरी अबाउट फ्यूचर बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड, करेक्ट. नंदिनी लिखती है शी नीड नॉट ट्रैवल बाय प्लेन एज शी हैज यस फोबिया ऑफ हाइट्स, ट्रू. नेहा लिखती है दे नीडंट ट्रबल देमसेल्व्स, यू नो दैट. ट्रबल यहाँ पे नेहा ट्रबल, ट्रबल ट्रबल, या दे नीडंट ट्रबल देमसेल्व्स, करेक्ट. ट्रबल वर्ब हो सकता है, राइट. वेद प्रकाश लिख रहा है ओके सॉरी, नो नीड ऑफ सॉरी बेटे, काम करो. नालंदा लिख रही है यू नीड नॉट थिंक अबाउट इट, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है. यू नीड नॉट थिंक अबाउट दैट, यू नो. तो ध्यान रखो नीड नॉट का यूज कर रहे हैं. चलो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं नीड के साथ, क्वेश्चंस पूछने हैं नीड के साथ, और नीड आपको हेल्पिंग वर्ब बोल के लेना है. नीड आपको हेल्पिंग वर्ब बोल के यूज करना है, एंड क्वेश्चंस आपको पूछने हैं नीड के साथ. कम ऑन, फटाफट फटाफट फटाफट. यू आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस विथ नीड. नीड के साथ आप कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहे हो, राइट. यू नीड नॉट गो टू कॉलेज, ओके. I need not eat an apple. I need not eat an apple. धनंजय करेक्ट. eat और apple के बीच में an देना पड़ेगा, क्योंकि वो नाउन है और वो नाउन की जो शुरुआत है वावल से शुरू हो चुका है, इसलिए eat और apple के बीच में an आएगा, करेक्ट. नानेश्वर I need not to do I need not do anything extra. Good, good, good. You are already settled. Yes, you are a professor, you are already settled, so definitely you did not work extra, you did not do anything extra, correct. Nalanda लिख लिए need I help, need I help, need I help you, need I help you, okay. need I not help you, okay. need I help you, need I not help you, दोनों के दोनों right है. need I come there, देखो आप जब कभी भी आप क्वेश्चन में बात करोगे तो क्वेश्चन में सिर्फ नीड भी आप यूज कर सकते हो एज अ वर्ब बोल के. नीड आई कम देयर, मेरी वहां पे आने की जरूरत है क्या. नीड आई कम देयर, नीड यू गो देयर, नीडंट आई कम देयर, नीडंट यू गो देयर, नीडंट यू वर्क हार्ड, नीडंट यू गो देयर. इन दिस वे यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, यू नो, राइट. एट व्हाट टाइम, देखो डब्ल्यूएच क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं. एट व्हाट टाइम नीड यू गो देयर, देखो मीनिंग. एट व्हाट टाइम नीड यू गो देयर, एट व्हाट टाइम नीड यू गो देयर, आपको यहां पे यस कितने बजे जाने की जरूरत है. एट व्हाट टाइम नीड यू गो देयर, यू नो, करेक्ट. नीड वी डू दिस, नीड आई नॉट टू कुक मील, ओके. अभी होटल शुरू हो चुके हैं, पक्का आपको जरूरत नहीं है कुक करने की, और पुणे में तो बहुत सारे अभी होटल्स खुले हुए हैं. यस यस यस, अब होटल की सर्विस शुरू हो चुकी है. नीड आई नॉट टू कुक मील, नो नीड, जस्ट यू कैन हैव फ्रॉम द पार्सल एंड ऑल, यू नो, ओके ओके. यस रूपाली, नीड यू 100 रुपीज, गलत. नीड यू 100 रुपीज, गलत, यू नो दैट. यस यस, कुछ तो चाहिए वहां पे, या डू यू नीड हो सकता है वहां पे, डू यू नीड 100 रुपीज, ये करेक्ट हो सकता है. नीड यू टू गिव हिम 100 रुपीज, कुछ ना कुछ तो वर्ब होना चाहिए नीड के साथ. रूपाली, नीड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, जो आपने यूज नहीं किया है. तो देयर इज अ नीड ऑफ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, तो आप यूज कर लो वहां पे. नीड यू,
नीड आई, नीड यू टू, नीड आई गो। नालंदा लिख रही है व्हाट नीडन शी लर्न, करेक्ट। नंदिनी लिख रही है नीड आई मिक्स क्रीम विथ melted chocolate, you are absolutely right. Need I mix cream with melted chocolate? जो melted chocolate है उसके साथ मुझे क्रीम ऐड करने की जरूरत है क्या, ये नंदिनी का क्वेश्चन है। यस एज यू विश नंदिनी, जो भी आप चाहते हो कर सकते हो। यस जरूरत के हिसाब से, आपकी लाइक और डिसलाइक के हिसाब से just you can add or whatever you know that. Okay. In this way yes you can use need, you know, आप need use कर लेते हो और need use करके आप questions भी कर सकते हो। yes and in this way कुछ WH question भी, at what time need I reach there, देखो at what time need I reach there, मुझे वहां पे कितने बजे पहुंचने की जरूरत है। at what time नीड आई रीच देयर, मुझे वहां पे कितने बजे पहुंचने की जरूरत है। एट वॉट टाइम नीड आई रीच देयर, यू नो, सही है। व्हेन नीड आई कम देयर, यस व्हेन नीड आई कम देयर। वेयर नीड आई गो, मुझे कहाँ जाने की जरूरत है। वेयर नीड आई गो, मुझे कहाँ जाने की जरूरत है। वेयर नीड आई गो, यू नो, ये भी हम कर सकते हैं। वेयर नीड आई गो, यू नो दैट। इन दिस वे कुछ WH क्वेश्चंस भी हम नीड के साथ पूछ सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई हैव केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू रिगार्डिंग सम WH क्वेश्चंस आल्सो। कुछ WH क्वेश्चंस भी मैंने आपके सामने अभी अभी रखे हैं। दिस इज नीड, यू नो। चलो इसका पैसिव करना है। क्या करना है? पैसिव करना है। क्या करना है? पैसिव करना है। कैसे कर लेंगे, कब कर लेंगे, मैं पूछ रहा हूं आपको कैसे कर लेंगे और कब कर लेंगे। चलो राइट इन द चैट बॉक्स, कब कर लेंगे ये तो पक्का है, जब ऑब्जेक्ट होता है, कुछ रिसीवर होता है तो ही कर लेंगे, तो ही कर लेंगे, यू नो, राइट। तो कैसे देना है, यस कैसे बोलना है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स क्या आप लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या आप एग्जाम्पल्स कुछ, देखो देखो, यस 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 लिखो, आई एम वेटिंग फॉर यू। यस नीड वी राइट लेटर, करेक्ट है, करेक्ट है। चलो पैसिव वॉइस में कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं नीड और नीड नॉट के साथ, यू नो, नीड नॉट ए हेल्पिंग वर्ब बोल के यूज करके कुछ पैसिव वॉइस में कंस्ट्रक्शन देने हैं, कुछ पैसिव वॉइस में हमें लिखना है। या एनी लिख रही है व्हेन ऑब्जेक्ट एंड रिसीवर इज देयर, ओके ऑब्जेक्ट और रिसीवर फाइंड आउट कर लो, एक एग्जाम्पल दे दो और चलो बना दो पैसिव वॉइस। नंदिनी जस्ट मेक दैट वन पैसिव वॉइस, कम ऑन गिव द वन एग्जाम्पल इन पैसिव वॉइस। चलो एक एग्जाम्पल आपको पैसिव वॉइस में देना है, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर एग्जाम्पल। या हाँ, यस एग्जाम्पल। A letter need not written by him, देखो a letter need not written by him, थोड़ा कहीं तो मिस हो चुका है। Money need not be taken by him, yes नालंदा का करेक्ट है। नेहा money need not be withdrawn from ATM, you are absolutely correct. Money need not be, देखो मैंने आपको बोला था हर कोई whatever, जो कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आएगा उस मॉडल ऑक्सिलरी के सामने हमें बी यूज करना पड़ेगा। जब कभी भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें बी वहां पे यूज करना होता है। इसके बारे में थोड़ा सोचो, यस और बी को मत भूलो। नंदिनी लिखती है यस ATM need not be what ATM need not be gone by me, yes need not be gone by me, you know that। बेटा ये नहीं होता है क्योंकि गॉन और ये जो गो वर्ब होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, गो को कभी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। नेहा सॉरी नंदिनी गो को कभी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो जो गो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो गो कभी भी हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं कर सकते। नंदिनी गो नाम का वर्ब कभी भी हम पैसिव वॉइस में नहीं यूज कर सकते, तो आपको वहां पर रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा वर्ब लेना पड़ेगा, दूसरा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल गलत हो चुका है, क्योंकि ये जो गो नाम का वर्ब है कभी भी हम पैसिव वॉइस में नहीं यूज कर लेते हैं। ओके एप्पल नीड नॉट बी ईटन बाय मी, ओके आई नहीं आप करेक्ट हो। ओके बेटा नंदिनी दूसरा एग्जाम्पल आप कर सकते हो। कम ऑन, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है वैसे, लेकिन एक बार आपके दिमाग में आ गया तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। करना क्या है, सिर्फ आगे आपको पहला जो है रिसीवर ले लो,
रिसीवर के आगे आपको निड नॉट रखना है, निड नॉट के आगे आपको बी रखना है, बी के आगे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, एंड बस जो बाकी बचे वाली चीजें हैं बाकी उसके बाद रखो. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इनफ, यू नो. कम ऑन, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग. स्कूल नीड नॉट टू बी. क्यों नीड नॉट टू बी हो गया अर्चना? नीड नॉट टू बी नहीं होता है, स्कूल नीड नॉट बी होता है. नॉट और बी के बीच में ये टू कहाँ से आ गया है? निकाल दो उसे. नीड नॉट टू की जरूरत नहीं है, नीड नॉट बी डायरेक्टली बोलो. वहां पे देखो, नीड नॉट और बी के बीच में टू नहीं आता है. चलो चलो, कम ऑन कम ऑन. स्कूल नीड नॉट बी स्टार्टेड बिफोर नवंबर. ओके ओके. या मीरा ने लिखा है एग्जाम्स नीड नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय यूनिवर्सिटी. ओके, चलो नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन. और कोई लिख रहा है? या यस यस. इन दिस वे बस आपको ध्यान कहां देना है? नीड नॉट और बी, नीड नॉट और बी, नीड नॉट और बी, इसके ऊपर ध्यान देना है. नीड नॉट बी एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, नीड नॉट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू नो. स्टूडेंट्स नीड नॉट टू बी. बेटे नीड नॉट टू बी हो गया, नीड नॉट टू बी हो गया, टू बी हो गया. तो नंदिनी आपको टू निकालना है वहां का. नीड नॉट बी वरीड, डायरेक्टली आपको क्या लिखना है? नीड नॉट बी वरीड ऐसे लिखना है. डिलीट मत करो, दूसरा लिखो बेटे. या चलो, क्योंकि आप ध्यान रखो नीड नॉट टू बी नहीं होता, टू बी नहीं होता. नीड नॉट और बी के बीच में टू मत लाओ. नीड नॉट बी करो. द मीटिंग नीड नॉट बी अटेंडेड बाय देम. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट नालंदा, you are absolutely right. Yes, your understanding is proper now. The meeting need not be attended by them now. जरूरत नहीं है मीटिंग अटेंड करने की. या रुशांक लिख रहा है बाइक need not be driven by me. ओके, आपके पास कोई सब्सटीट्यूट है, आपका फ्रेंड है, तो वो बाइक ड्राइव करेगा, आपको बाइक चलाने की जरूरत नहीं है. You need not be. या नेहा, international flights need not be arrived or departed in few upcoming months, you know. इसके लिए थोड़ा नेहा आप बस कर लो. क्या? international flights means international flight services need not be started, you know, need not be started. Correct है. Students need not be worried. Nandini, you are correct now. Dr. Naneshwar, university need not be taken exams in this pandemic situation. Correct है. Yes. In this way हम काम कर लेते हैं नीड नॉट के ऊपर. देखो लिखते लिखते बहुत बार इसके ऊपर कंफ्यूजन्स होते हैं, बहुत बार हम क्या होते हैं, टेम्प्ट कर लेते हैं किधर? नीड नॉट टू बी, नीड नॉट टू बी, नीड नॉट टू बी, ऐसे कुछ हम कर लेते हैं. लेकिन जब कभी भी नीड नॉट टू बी आएगा तो जो बी है ना, बी ए वर्ब हो जाएगा, एंड वो नीड नॉट जो है ना वो मेन वर्ब हो जाएगा. सही है. तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन्स है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. नीड नॉट के सामने बी आएगा, नीड नॉट के सामने बी आएगा, और बी के सामने क्या आएगा? वर्ब का क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. एंड पहले क्या आएगा? रिसीवर आएगा. पहले क्या आएगा? रिसीवर आएगा. एट द बिगिनिंग रिसीवर के सामने नीड नॉट बी, नीड नॉट बी के सामने वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड देन रिमेनिंग पार्ट, यू नो, मीन्स सब्जेक्ट वगैरह जो भी है वो हम लिख सकते हैं. लेकिन पहले सबसे रिसीवर मीन्स ऑब्जेक्ट के सामने नीड नॉट बी, पैसिव कंस्ट्रक्शन बोल रहा, और उसके सामने हमें लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमें लिखना है. यू नो दैट. सो ध्यान रखो, ये हमें यूज करना है. ऐसे हमें नीड नॉट बी का यूज हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में करना होता है. किसका? नीड नॉट बी का. यू नो, एनी प्रॉब्लम विद दिस नीड नॉट? कुछ प्रॉब्लम है? या नेहा, गुड. यस मीरा, यस. V3 इज इंपॉर्टेंट वन. बी के सामने V3 आना है तो वो पैसिवाइज होता है. बी के सामने V3 आना है तो ही वो पैसिवाइज होता है. बी के सामने V3 आना है. करेक्ट है. नाउ जैसे ये नीड नॉट होता है, नीड नॉट के जैसे ही और एक मिस मॉडल ऑक्सिलरी है, और उसका नाम है डेयर नॉट. क्या है?
डेयर नॉट, देखो डेयर नॉट, ये भी नेगेटिव वाला ही है। डेयर नॉट क्या है, डेयर नॉट। और जैसे निड नॉट का डिस्कशन हो चुका, निड नॉट के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या, अरे बाबा निड नॉट जो होता है, निड नॉट के 3 फॉर्म है। एक तो नाउन बोल के भी वो यूज होता है, वो हेल्पिंग वर्ब बोल के भी यूज होता है, मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी, और मेन वर्ब बोल के भी यूज होता है। सही है ना? यस आई नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो डेयर नॉट है ना, डेयर नॉट, ऐसे ही ये निड नॉट के जैसे ही यूज होता है। क्या ध्यान रखना है आपको, ये जो डेयर नॉट होता है, ये जो डेयर नॉट धाडस नाही म्हणतो आपण, धाडस नाही आहे, यस असं म्हणायला लागतो आपण, धाडस नाही है, यस उसका यूज हम निड नॉट जैसे ही। कैसे निड नॉट, देखो 3 टाइप्स उसके यूज थे। नीड ए नाउन बोल के आया था, नीड वो मेन वर्ब बोल के आया था, और वही नीड नॉट बोलने के बाद वो हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी बोल के आया था। वैसे ही यहाँ पे डेयर नॉट, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, ऐसे बोलने के लिए डेयर नॉट मॉडल ऑक्सिलरी बोल के भी हम यूज कर लेते हैं। एंड उसके सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में। तो चलो आई एम वेटिंग फॉर योर एग्जाम्पल, चलो लिखो डेयर नॉट के कुछ एग्जाम्पल्स लिखो। डेयर नॉट का यूज आप करने जा रहे हो हेल्पिंग वर्ब बोल के, मॉडल ऑक्सिलरी बोल के आप यूज करने जा रहे हो, और उसी का यूज मॉडल ऑक्सिलरी बोल के कर लो। एंड चैट बॉक्स में आप लिखने जा रहे हो कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ examples. I'm waiting for your examples. Till then just I'll have water, you know that. चलो फटाफट आप just लिखने जा रहे हो what या रूपाली बोल रही है निड नॉट के बारे में पैसिव वॉइस। चलो एक्सप्रेस कर लेता हूं मैं, डोंट वरी रूपाली, आई विल एक्सप्रेस एक्सप्लेन वो एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं, और एक बार कर लो, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो डेयर नॉट के कुछ एग्जाम्पल्स लिखो आप। या कम ऑन, डेयर नॉट की कुछ एग्जाम्पल्स आप लिखने जा रहे हो, राइट देम। डेयर नॉट के एग्जाम्पल्स आप कुछ लिखने जा रहे हो, कम ऑन। डेयर नॉट, यू डेयर नॉट गो आउट विदाउट मास्क। अरे वाह, बढ़िया। आई डेयर नॉट टू फेस, अगेन मीरा ने लिखा है डेयर नॉट टू, डेयर नॉट के आगे टू नहीं आएगा। रोशांक लिख रहा है he dare not accept the challenge। यस बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया रोशांकल का चैलेंज, दो या तीन लोगों ने यस फेसबुक के ग्रुप के ऊपर वीडियोस पोस्ट किए, उसमें है एक रोशांक और दूसरी है जैनी पानगांवकर, यू नो दैट। इन्होंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए एंड ग्रुप पे अभी रूपाली ने एक वीडियो पोस्ट किया था और आकाश पांडे ने पोस्ट किया था, बाकी लोगों ने वीडियोस पोस्ट नहीं किए। कल ही मैंने आप लोगों को बोला था आप लोग वीडियोस पोस्ट नहीं करोगे, एंड आई एम श्योर आप पोस्ट नहीं करोगे तो डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको डेवलपमेंट करना है तो कर लो। या he dare not go out without permission, करेक्ट है। नंदिनी लिख रही है she dare not speak in public, you are absolutely right नंदिनी, she dare not speak in public, you know, she dare not speak in public, और पब्लिक में बातें नहीं कर सकती, dare not, उसकी हिम्मत नहीं है। या नालंदा लिख रही है you dare not face him in the ground, you know that, good नालंदा, you are correct, you know that, yes this is dare not, you know। तो चलो yes examples, अभी रूपाली मुझे बोल रही थी कि सर निड नॉट के कुछ पैसिव के एग्जाम्पल्स दे दो। बस बेटे वो जो निड नॉट है, निड नॉट के आगे बी रखो, बी के आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो। इट निड नॉट बी डिस्कस्ड, यू नो, दिस टॉपिक निड नॉट बी टॉट एज इट इज वेरी इजी, दिस टॉपिक निड नॉट बी डिस्कस्ड, दिस टॉपिक निड नॉट बी टॉट एज इट इज वेरी इजी, यू नो दैट। यस यू निड नॉट बी, यू निड नॉट बी अपॉइंटेड, आपको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, यू निड नॉट बी अपॉइंटेड, यू नो। यस इन दिस वे वी कैन मेक पैसिव वॉइस, ऐसे हम कुछ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यू निड नॉट बी, यस यू निड नॉट बी, पैसिव के और बी के सामने थर्ड फॉर्म, यू निड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी, यू निड नॉट बी अवॉर्डेड, यू निड नॉट बी फेलिसिटेटेड, you need not be appreciated, right? आपकी जो तारीफ है ना करने की जरूरत नहीं है, you need not be appreciated by us, you know। ऐसे हम उसका पैसिवाइज कर सकते हैं ना। मीरा ने लिखा है I dare not accept the yesterday challenge, you know that,
क्यों डेयर नॉट, क्या आप सोच रहे हो, क्यों ऐसे सोच रहे हो। देखो, एक दिन आपको आगे आना पड़ेगा और आपको डेयर करनी पड़ेगी एंड आपको बोलना पड़ेगा आई डेयर, आई डेयर, आई डेयर, ऐसे बोलना पड़ेगा। आई डेयर नॉट टू मीट हिम, आई डेयर नॉट टू मीट हिम। अगेन डॉक्टर ज्ञानेश्वर, आप डेयर नॉट और मीट के बीच में आप लगा रहे हो टू, जरूरत नहीं है। आई डेयर नॉट मीट हिम, इतना ही काफी है। आई डेयर नॉट मीट हिम, इतना ही काफी है डॉक्टर ज्ञानेश्वर। डेयर नॉट और मीट के बीच में टू लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बोलने जा रहा हूं। मीट और नॉट के बीच में टू मत लगाओ। वो टू लगाने के बाद वो डेयर नॉट मेन वर्ब जैसे फील करता है, लेकिन हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बोल के उसका यूज कर रहे हैं। ध्यान रखो आप सभी लोग, यू नो। ओके ओके ओके, ना इसी का पैसिवाइज करना है, तो कैसे कर लेंगे पैसिवाइज, हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द पैसिवाइज। अगेन द सेम स्ट्रक्चर, अगेन द सेम स्ट्रक्चर, यू नो। या कम ऑन, कैसे हो जाएगा, या या कैसे हो जाएगा पैसिवाइज में, कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो। कम ऑन, राइट सम एग्जांपल्स इन पैसिवाइज। You can write some examples in passive voice. Come on, I'm waiting. I'm waiting for your examples. You can write some examples in passive voice. कुछ examples of passive voice में लिख सकते हो. I'm waiting. I'm waiting for your examples. Yeah, the war dare not be started by enemy. Good, good, good. Or she dare not eat an apple. She dare not eat an apple. An apple, an apple daren't be eaten by her. An apple daren't be eaten by her. An apple daren't be eaten by her. The experience daren't be taken by her, you know. Yes, the experience daren't be taken by her, you know that. The experience daren't be taken by her, you know. The experience. Come on, come on. The experience daren't be taken by her, you know. The challenge daren't be accepted by you. The challenge daren't be accepted by you. You are Ranachod Das. The challenge daren't be accepted by you. Challenge आपसे accept करने की आप में हिम्मत नहीं है. The challenge daren't be accepted by you, you know. Understand? In this way, in this way. कुछ sentences हम passive voice में यहाँ पे change कर सकते हो. Right, 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 right. Yeah. Okay then. So what we discussed today? चलो थोड़ा सा recap ले लेते हैं. क्या हमने आज डिस्कस किया है? मस्ट के ऊपर हो चुका डिस्कशन. मस्ट के बाद ऑट टू के ऊपर हमने डिस्कस किया. देन ऑट टू के बाद नीड नॉट के ऊपर डिस्कशन हो चुका, एंड नीड नॉट के बाद हमारा डिस्कशन हो चुका है डेयर नॉट के ऊपर. यस, सो वी डिस्कस्ड 4 मॉडल ऑक्सिलरीज टुडे. एक्टिव पैसिव ऐसे 4 मॉडल ऑक्सिलरीज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. एक है मस्ट, दूसरा होता है ought to, तीसरा होता है need not, and the fourth one was dare not, you know. ऐसे 4 मॉडल ऑक्सिलरीज एक्टिव और पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे यूज करना है, कौन से सिचुएशन में यूज करना है, क्या स्ट्रक्चर में यूज करना है, क्या स्ट्रक्चर होता है. ऑल दीज थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, यू नो. एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, इसी के जो भी कुछ वीडियोस है तो आई विल सेंड यू ऑन द ग्रुप. और एक बार आप देखो मस्ट कैसे यूज होता है, और एक बार आप सुन लो ऑट टू का क्या यूज होता है, और एक बार सुन लो नीड नॉट और डेयर नॉट का क्या यूज होता है. एंड इसके सेंटेंसेस, इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए आप सोचो और ग्रुप के ऊपर लिखो, बातें करो, लिखो, तो एटलीस्ट इसके यूजेस क्या होते हैं, कहाँ यूज होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, एटलीस्ट यू कैन राइट ऑन द ग्रुप. I'm waiting for your writing, I'm waiting for your videos, and I'm sure all those things I can see on the group tomorrow. कल मैं ग्रुप के ऊपर देख सकता हूँ.
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. जस्ट आई हैव गॉट लिटिल बिट टायर्ड, यू नो दैट, बिकॉज इसके पीछे ही पहले ही एक लाइव सेशन 1.5 घंटे का मैंने अभी कंडक्ट किया था, वो थोड़ा अलग था. तो अभी और एक 1.25 घंटा मैं आपके सामने बात करना, तो रियली आई एम टायर्ड लॉट ऑफ, यू नो. सो टुमारो हम मिल लेते हैं 7 बजे, और जो रिमेनिंग मॉडल ऑक्सिलरीज है उसके ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेंगे और एक्टिव पैसिव वॉइस का थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, एंड देन वी शुड प्रोसीड टू सम अनदर टॉपिक्स, यू नो दैट. उसके बाद कुछ अलग टॉपिक्स की तरफ हम मुड़ जाएंगे, यू नो. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. सबके लिए गुड नाइट, सबके लिए शुभ रात्रि, यू नो. मिलते हैं कल विथ आर रिमेनिंग मॉडल ऑक्सिलरीज, यू नो. कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ग्रुप्स के ऊपर आप लिख सकते हो, उसका सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ. वहीं पे कुछ लिख के मैं सोल्यूशन आपको दे सकता हूँ. तो कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लिखो ग्रुप के ऊपर, पूछो मुझे, आई कैन गिव यू द सोल्यूशन, यू नो. सो गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट नाइट ऑल ऑफ यू. मिलते हैं कल, यू नो. सी यू देन टुमारो.